Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today we will study the new chapter, or we can say the new unit, which is the vector calculus. And in this unit, first of all, we will study the scalar and vector product of vectors. We have already studied these topics in lower classes, but now I will again tell you about these vectors. So what is the scalar product or dot product? We can say if we have two vectors, a vector and b vector, these are the two vectors, a vector and b vector, and if theta is the angle between these two vectors, then AB cos theta is called the dot product of these two vectors, and it is denoted by a vector dot b vector. So in short, we can say that a vector dot b vector, this is equal to AB cos theta. And where theta lies between the closed interval 0 and pi. So note that if either vector a is equal to 0 or vector b is equal to 0, then in that case theta is not defined. So in such case, the product of these two vectors is equal to 0. So next, we have, because this AB cos theta is a scalar quantity, so many times this dot product is also called as scalar product. Now next is the important results. So first result is that the dot product is commutative, that is A vector dot B vector is equal to B vector dot A vector. Second, a vector dot b vector, that is the dot product is equal to 0 of these two vectors is equal to 0 if and only if a vector is equal to 0 vector, or we can say b vector is equal to 0, or we can say that the theta this is equal to pi by 2, because we know that the cos of 90 is 0. Next is the unit vector. So unit vector I into j, this is equal to 0. Unit vector j into k, this is equal to 0. Similarly, unit vector k into I, this is equal to 0. But the unit vector I into I, this is equal to 1. Similarly, j into j, this is equal to 1, and k into k, this is equal to 1. So these vectors, that is a vector and b vector, are said to be orthogonal, or we can say orthonormal, if and only if the dot product of these two vectors is equal to 0. Then the product of the same vectors, that is a vector dot a vector, this is equal to a vector squares, and this is equal to a square. We can write it as the mod of a vector whole square. Similarly, the unit vector I square is equal to unit vector j square, this equal to unit vector k square, and this whole is equal to 1. Next result is that the dot product of these two vectors, that is a vector and b vector, this is equal to the modulus of a vector into projection of b vector on a vector, or we can write projection of b on a vector is equal to a vector dot b vector divided by mod of a vector. Angle theta between two vectors is given by cos theta, and this is equal to a vector dot b vector divided by mod of a vector into mod of b vector. And next result is that the dot product of a vector into b vector plus c vector, okay, this is equal to a vector dot b vector plus a vector dot c vector. Ninth result is that a vector plus b vector whole square, this is equal to this is the simple formula, that is a plus b ka whole square, and this is equal to a vector square plus b vector square plus 2 times a vector dot b vector. Similarly, a vector minus b vector whole square is also equal to the formula, that is a square plus b square minus 2ab, but we have to use vectors also. Third is that a vector plus b vector into a vector minus b vector, this is equal to that is a vector square minus b vector square. Now dot product in term of components. So if a vector is equal to a1i plus a2j and plus a3k, and b1 is equal to b, and b vector is equal to b1i plus b2j plus b3k, then the product of these two vectors is given by a1b1 plus a2b2 plus a3b3.
So if we have these two vectors, a vector and b vector, and we have an alpha, any scalar, then we can write alpha times a vector dot b vector. This is equal to alpha times a vector into b vector. So means alpha यहाँ पे क्या आएगा, बाहर आ जाएगा और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा. और we can write it as a vector dot alpha into b vector. So ये भी हम कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास कम्यूटेटिव भी होता है. नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है और वो उसको हमने उसके कंपोनेंट्स में लिखा है, सिमिलरली बी वेक्टर के भी कंपोनेंट्स लिखे, सो उनका जो एंगल होगा दैट इज जिसको हम कॉस थीटा से लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर. सो अगर हमें कहीं पे वेक्टर का एंगल निकालना होगा तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है. सो लास्ट रिजल्ट इज दैट ए वेक्टर का अगर हमने कंपोनेंट्स लिया, बी वेक्टर के भी कंपोनेंट्स लिए, सो दीज टू वेक्टर्स आर, ये परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इनका आपस में मीन जो कंपोनेंट्स के आपस के प्रोडक्ट है वो भी किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो. दैट इज a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 दिस इज इक्वल टू जीरो. मीन्स ये एक तरीके से इसका क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है. थर्ड है कि अगर ये ही दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे, जब a1 इज डिवाइडेड बाई b1 दिस इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई b2 एंड दिस इज इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाई b3. नेक्स्ट इज द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट. तो सिमिलरली जैसे हमने भी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के लिए पढ़ा, वैसे अब हम वेक्टर प्रोडक्ट के लिए पढ़ेंगे. सो यहाँ पे so vector product, in vector product or we can say cross product, if we have two vectors that is a vector and b vector and theta is the angle between these two vectors, then let n be the unit vector which is perpendicular to a vector as well as b vector, such that a vector, b vector and unit vector n form a right-handed system. Then this quantity that is ab sine theta into a unit vector n is called the cross product of these two vectors, and we write it as a vector cross b vector, this is equal to ab sine theta into unit vector n, or sometimes we will also write it as mod a into mod b into sine theta into unit vector n. So from this figure you can see this is the a vector and this is the b vector, this is the angle that is theta, and this is the unit vector n. Note that a vector cross b vector is a vector whose modulus is whose modulus ab sine theta and its direction is perpendicular to a vector as well as b vector. So as this is a vector quantity, so therefore we call this product as the vector product. सो नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. सो अब जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट के इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े, वैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट और वी कैन से क्रॉस प्रोडक्ट के भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे. सो फर्स्ट रिजल्ट इज दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंड दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. मीन्स ये कम्यूटेटिव नहीं है, दिस इज नॉन कम्यूटेटिव. सेकेंड क्वांटिटी, ये सेकेंड रिजल्ट है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर implies a vector is equal to 0 or b vector is equal to 0, or we can say this a vector is parallel to b vector or a vector and b vector are collinear. Similarly, unit vector I into I cross I this is equal to 0 vector. Similarly, unit vector j cross j this is equal to 0, unit vector k cross k this is also equal to 0 vector, but unit vector I into j, from this figure you can say the unit vector I into j gives unit vector k. Similarly, unit vector j into cross k this gives I vector, similar I unit vector, and similarly unit vector k cross I this gives j unit vector. Angle theta between these two vectors is given by sine theta, and which is equal to mod of a vector cross b vector divided by modulus of a vector into modulus of b vector. So unit vector perpendicular to the plane of the a vector and b vector is given by plus minus, that is a vector cross b vector whole divided by modulus of a vector cross b vector.
Similarly, next result is the area of parallelogram with adjacent sides A vector and B vector is given by mod of cross product of these two vectors, that is A vector cross B vector. So area of triangle with adjacent sides is given by 1/2 times mod of A vector cross B vector. Similarly, the area of parallelogram with diagonals A vector and B vector is given by 1/2 times mod of A vector cross B vector. So if alpha is any scalar, then alpha times A vector cross B vector, this gives alpha into A vector cross B vector, and this is equal to A vector cross alpha into B vector. So 10th result is that A vector cross B vector plus C vector, this gives A vector cross B vector plus A vector cross C vector. Next result is that A vector across B vector whole square, this is equal to modulus of A vector square into modulus of B vector square minus A vector dot B vector whole square. And last result is that if A vector is equal to A1I, these are the components A1I plus A2J plus A3K, and B1 and B vector is equal to this quantity, we will write here, and B vector is equal to this quantity, that is B1I plus B2J plus B3K, then the cross product of these two vectors is given by the determinant, that is IJK, then A1, A2, A3 and B1, B2 and B3. Now next topic is the scalar triple product. So if we have three vectors, that is A vector, B vector and C vector, then the scalar triple product denoted by we can say given by this, that is A vector cross B vector dot C vector is called the scalar triple product of these vectors, and it is denoted by closed bracket A vector B vector into C vector. So the geometrical interpretation of the scalar triple product is that it represents the volume of the parallelepiped whose continuous coterminous edges, that is A, B, C form a right-handed system of vectors. So basically the coterminous means means having the same boundary or sharing the same border. Next is the properties of scalar triple product. So first property is that if these are the three vectors and these are cyclically permuted, then the value of scalar triple product remains the same. That is the A vector, B vector, C vector, this is equal to B vector, C vector, A vector, and this is equal to C vector, A vector, B vector. So means the product of these three vectors remains the same if they are cyclically permuted, means if these are cyclically permuted. सो साइक्ली परम्यूटेड मीन्स इफ दिस इज जैसे ये देखिए कि ये है ए वेक्टर, फिर है बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर. अब साइकिल के हिसाब से चलेंगे तो नाउ फर्स्ट कम्स बी वेक्टर, फिर आएगा सी, उसके बाद ए वेक्टर, फिर अगले में क्या होगा, फिर सी वेक्टर आएगा, फिर ए वेक्टर आएगा और फिर बी वेक्टर आएगा. तो मीन्स साइकिल चल रहा है ये. Next property is that in scalar triple product the position of dot and cross can be interchanged provided that the cyclic order of the vectors remains same. So means हम scalar triple product में क्या कर सकते हैं, जो position है dot product और cross product को वो हम interchange कर सकते हैं, मगर provided क्या होना चाहिए, जो उसका cyclic order है of उन vectors का वो same रहना चाहिए. So means A vector cross B vector dot C vector, this is equal to A vector dot B vector cross C vector. Similarly, third property is change of cyclic order of vectors in scalar triple product changes the sign of scalar triple product but not the magnitude. तो यहाँ इस केस में क्या होगा, अगर हमें चेंज करेंगे साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो उसका जो साइन है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस द साइन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मीन्स उसका क्या करेगा, वो साइन को चेंज कर देगा बट नॉट द मैग्नीट्यूड, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को वो चेंज नहीं करेगा. सो यहाँ पे जैसे देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो अब जब हमने इसको नेक्स्ट में चेंज किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये साइन चेंज कर गया, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा. नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि जब हम साइक्लिक ले रहे हैं पहले ए था, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, देन अगेन चेंज करेंगे तो ये माइनस ए आएगा.
So next property is property 4. The scalar triple product of three vectors is 0 if any two of them are equal. So हम कहेंगे कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो थ्री वेक्टर्स का ज़ीरो कब होगा, अगर उनमें से कोई भी दो जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इफ़ एनी टू ऑफ देम आर इक्वल, अगर कोई भी उनमें से जो दो वेक्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे. प्रॉपर्टी फिफ्थ में है कि फॉर एनी थ्री वेक्टर्स एंड स्केलर लेमडा वी हैव, ये अगर हम इसको लेमडा से मल्टीपल कर रहे हैं तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. प्रॉपर्टी 6 में क्या है कि फॉर एनी वेक्टर्स, ये हमारे पास वेक्टर्स है और उसके स्केलर्स भी गिवन है एल एम एन. सो अगर हम इन वेक्टर्स को इनके साथ स्केलर्स भी मल्टीपल कर लें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कि जो एल एम एन है वो हम बाहर ले लेंगे और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. प्रॉपर्टी 7 में है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज 0 इफ एनी टू ऑफ देम आर पैरेलल और कोलिनियर. सो हम कहेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट जो थ्री वेक्टर्स का है वो 0 कब होगा, अगर उनमें से कोई भी दो जो वेक्टर्स होंगे या वो पैरेलल होने चाहिए या वो कोलिनियर होने चाहिए. Last property is that necessary and sufficient condition for the non-zero non-collinear vectors that is a b c to be coplanar is that उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए. सो इन शॉर्ट कि अगर हमें कहीं पे भी ये पूछा होगा कि व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री non-zero non-collinear vectors to be coplanar is that उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल. नेक्स्ट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. सो मीन्स अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है और उसके कंपोनेंट्स गिवन है, फिर बी वेक्टर के भी कंपोनेंट्स गिवन है, इसी तरीके से सी वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है, तो उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कैसे हम देंगे, डिटर्मिनेंट से. दैट इज a1 a2 a3 देन b1 b2 b3 देन c1 c2 एंड c3. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. जैसे अभी हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा, अब वैसे ही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा, सेम हमारे पास थ्री वेक्टर्स है, जो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज कॉल्ड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स एंड इट इज रिटन एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख के इनटू क्रॉस सी वेक्टर. सो हमें एक चीज़ नोट करनी है कि इन दोनों ये जैसे ये जो हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है ये इक्वल नहीं होते हैं. मींस दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दिस इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. So this is the vector which lies in the plane of b vector and c vector and is perpendicular to a vector. So जो ये क्वांटिटी है इसका क्या मतलब है हुआ कि ये जो वेक्टर है ये कहाँ पे लाई करेगा, इस प्लेन पे, कौन से प्लेन पे, जो क्या जिसमें क्या क्या टर्म्स होंगे, क्या क्या वेक्टर्स होंगे, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और परपेंडिकुलर किसके होगा, इस ए वेक्टर के. सिमिलरली जो ये क्वांटिटी है इसमें क्या होगा कि ये जो वेक्टर है वो लाई करेगा प्लेन कौन से में, ए एंड बी वेक्टर में, और परपेंडिकुलर किसके होगा, इस सी वेक्टर के. सो नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन फार्मूला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो इसका एक्सपेंशन फार्मूला क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर. सो ये दो इसके फॉर्मूलाज है. सिमिलरली अपोजिट के लिए ये फॉर्मूला आएगा. सो ये आपने सारे फॉर्मूलाज क्या करने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं का यूज क्वेश्चन में होगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स. अभी तक हम थ्री वेक्टर्स के लिए क्लियर कर रहे थे. अब अगर हमारे पास फोर वेक्टर्स होंगे तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर. सिमिलरली अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स निकालना है तो उस केस में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा. सो यही डिफरेंसेस है, ये आपको याद रखने हैं. सो नेक्स्ट दिस इज दिस क्वांटिटी दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड कोप्लानर विथ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर. इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर एंड कोप्लानर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. Next result is that a vector cross b vector into dot product c vector cross d vector, this is equal to this determinant, that is a vector dot c vector, b vector dot c vector, then a vector dot d vector and b vector dot d vector.
Next result is that A vector cross B vector A cross C vector cross D vector, this is equal to this quantity, that is scalar triple product of this into C vector and minus scalar triple product of this term into D vector. And similarly for the next result. So last is the reciprocal system of vectors. So if we have three non-zero, non-collinear and non-coplanar vectors, then the three vectors we are taking, that is A vector dash, B vector dash and C vector dash is given by, this is basically the reciprocal. अगर हमारे पास ये तीन vectors है जो कि क्या है, वो नॉन ज़ीरो है, नॉन कोलिनियर है और नॉन कोप्लानर वेक्टर्स है, तो उनका जो रेसिप्रोकल किस तरीके से गिवन होगा, इस क्वांटिटी से इन टर्म्स से डिनोट करेंगे और वो किसके इक्वल होगा. सो ए वेक्टर डैश दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी. सिमिलरली बी वेक्टर dash this is equal to C vector cross A vector divided by scalar triple product of these three vectors. And similarly for C vector dash this is equal to A vector cross B vector divided the scalar triple product of these three vectors. So these are called the reciprocal system of the vectors A vector, B vector and C vector. So now we have studied all the results and important terms which are used in scalar and vector product. So now we will solve some examples on these topics. So first example is that find the angle between the vectors. Here the first vector is given, A vector is equal to I minus j plus k and B vector is equal to I plus j minus k. So इस केस में हमें क्या करना है, हमें इसका एंगल फाइंड करना है. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स. तो मीन्स ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है इसके बीच का जो हमें एंगल हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, थीटा. सो अब हमें पता है कि जब हमें एंगल निकालना होता है दो वेक्टर्स के बीच में, तो मीन्स वो किसके इक्वल होता है, ए बी जो वेक्टर है ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो अब जो ए बी है बेसिकली ए क्या होता है, वो दैट इज़ द बेसिकली मॉडुलस निकालना होता है हमें. सिमिलरली बी के कंपोनेंट्स का मॉडुलस निकालना है, तो हम यहाँ पे वही चीज़ करेंगे. सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए किसके इक्वल आ जाएगा. सो ए के कंपोनेंट्स क्या है, दैट इज़ आई के साथ हो गया इसका कोफिशिएंट 1, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, देन इट इज़ प्लस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, देन नेक्स्ट टर्म विल बी 1 का स्क्वायर और वो किसके इक्वल आ जाएगा, रूट 3 के इक्वल. सिमिलरली बी के किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रूट 3. सो ये हमारे पास आ गया ए और बी. अब हमें ए इंटू बी निकालना है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का आपस में कंपोनेंट्स को आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. सो फर्स्ट हो जाएगा 1 इंटू 1, देन नेक्स्ट विल बी प्लस माइनस 1 इंटू 1, देन अदर टर्म विल बी 1 इंटू माइनस 1. ओके, सो यहाँ से हमारे पास कितनी टर्म बन जाएगी, 1 माइनस 1 माइनस 1. सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1. सो ए डॉट बी भी हमने निकाला दैट इज़ माइनस 1. सो ए अब हम वैल्यू फार्मूला में पुट कर लेंगे एंगल निकालने के लिए. सो आई विल राइट हियर now a vector dot b vector this is equal to a b cos of theta. So this implies अब a vector dot b vector किसके इक्वल आया, -1. सो -1 दिस इज इक्वल टू, अब a और b हमने कितना निकाला था, रूट 3 इंटू रूट 3. यहाँ पे हम लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 और कॉस ऑफ थीटा. सो ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा. सो इसको आफ्टर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू -1/3. सो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस टाइम्स 1/3. सो दिस इज द एंगल. सो ये हमारे पास इसका एंगल आ गया. So next question is that find the sine of the angle between the vectors, these are two vectors, and also find the unit vector perpendicular to both of the vectors. So इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास जो गिवन है, a वेक्टर किसके इक्वल है, 2i माइनस j प्लस k एंड सिमिलरली b वेक्टर हमारे पास इक्वल टू है 3i प्लस 4j माइनस k. सो सबसे पहले हम इसमें a और b निकालेंगे. सो a किसके इक्वल आ जाएगा,
जाएगा? ए आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बिकम 4 + 1 एंड विच इज़ इक्वल टू √6। सिमिलरली हम बी निकालेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ। 3 का स्क्वायर हो गया 9 + 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड प्लस दैट दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू √26। सो ए बी हमारे पास आ गया। अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे साइन की बात कर रहा है, तो साइन मीन्स साइन कहाँ पे यूज़ होता है? ये क्रॉस प्रोडक्ट में यूज़ होता है। सो हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वो हम किस तरीके से निकालते हैं? बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। सो आई इंटू जे इंटू के, और इसके हम अब कोफिशिएंट्स लिखेंगे। दिस इज 2 -1 1, इट इज़ 3 4 एंड -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 - 4 इंटू आई, देन माइनस इंटू -2 -3 इंटू जे, देन +8 +3 इंटू के यूनिट वेक्टर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -3 इंटू आई +5 इंटू जे +11 के। सो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी आ गया। अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसका -3 का स्क्वायर, देन इट इज़ 5 का स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज +11 का स्क्वायर। सो आफ्टर सॉल्विंग ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 155। सो नाउ हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए बी साइन theta. So where theta is the angle between a vector and b vector. So I will write here where theta is the angle between a vector and b vector. ओके, सो हमारे पास अब ए वेक्टर जो मॉडुलस की वैल्यू आई थी वो कितनी थी? √155। सो दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए कितना निकाला हमने? √6। बी कितना आया था हमारे पास? 26 √26 इंटू साइन ऑफ थीटा। सो यहाँ से ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1/√155 डिवाइडेड बाई 156। सो अब जो इसका यूनिट वेक्टर है, क्योंकि हमें इसका यूनिट वेक्टर भी साथ में निकालना है, सो आई विल राइट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। ये हमें परपेंडिकुलर करना है, किसके निकालना है? टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और उसका मॉडुलस, दैट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो वो किसके इक्वल आ जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई √155, और साथ में हमारे पास जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था वो किसके इक्वल था? -3i +5j एंड +11k. So this is the answer. Next question is, find the area of the parallelogram having two adjacent sides OA and OB, where O is the origin and the position vectors of A and B are respectively. A vector is equal to I plus 2j plus 3k and B vector is equal to -3i -2j प्लस के। सो हमें पता है कि जब भी हमें एरिया निकालना होता है पैरेललोग्राम का, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमें फाइंड करना होता है। तो सेम यहाँ पे हम वही फाइंड करेंगे। ए हमारे पास गिवन है आई वेक्टर +2j +3k यूनिट वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर हमारे पास गिवन है -3i -2j एंड +k। सो अब हमने क्या करना है? सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो किसके इक्वल हो जाएगा? डिटर्मिनेंट आई जे के, और इसमें इसके कोफिशिएंट दैट इज 1 2 3, देन -3 -2 एंड 1। सो इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 + 6 इंटू आई, देन -1 + 9 इंटू जे, एंड लास्ट टर्म विल बी -2 + 6 इंटू k, and from here it will become 8i
10J ये आ जाएगा साथ में प्लस 4K। सो ये हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड होगा वो किसके इक्वल होगा, इनका स्क्वायर रूट करेंगे हम, दैट इज़ 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर देन प्लस 4 का स्क्वायर। और यहाँ से इसको आफ्टर सॉल्विंग ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 180। सो देयरफॉर वी विल राइट दैट एरिया ऑफ parallelogram is equal to mod of a vector cross b vector, and which is equal to square root of 180. This is the answer. So thank you.